So in the last lecture, we discussed about the way we can do the indexing, or the way we can search the things like for a particular query. So we did two things. First, we discussed that the Window Explorer search or Linux search. So that is not good enough. So that is not the answer for these kind of collections. So then we discussed about the term document incidence matrix. So the term document incidence matrix. So that we did. So even in that matrix, we see that there is lot of empty cells. So now for this particular matrix, uh, let's say we have a very large collection. So in the last lecture, we were discussing about the Shakespeare collection. So let's say this, we have 1 million documents. So from the web perspective, even this is very small. In the web, there are more than there are nowadays it is about a trillion documents are there. So let's consider that we have 1 million documents, and each of document contains 1,000 words. And let's say we assume that 6 bytes per word is average. Some words may be larger or some words may be smaller. Let's say we have 6 bytes we are doing like for one word, including spaces, punctuation. So it means that it is around 6 GB of data that we have in these documents. So, and let's say distinct terms. So these are 500,000 or 5 lakhs distinct terms. So this is very common in the English language. So that there are around 5 lakh different terms are there. So Oxford list around 7.5 lakhs. So, but normal collections do not contain more than 5 lakhs or so. So these are the different words which are possible. So using these words, these documents have been written. So, so let's say this kind of collection is there. Now we try to understand that whether this term document matrix, whether that solution works or not. If you remember in the last lecture, we were also discussed about the actual problem with this. So in the lecture that we discussed about these problems. So in the term document matrix, what we were doing is on columns we were having the document names. So D1, if you remember that on column we were having the Shakespeare's novels name. So and on this side we have the words. So on this side we were having words. So if a word is present in the document, then there is 1. If word is not present in the document, then there is a 0. So this we had discussed in the last lecture. So now in our example, so what we are considering is that there are million of documents. It means number of columns are 1 million. And we know that still this is not a very large number from the web's perspective, but let's say, so there are number of columns are 1 million and number of rows. This depends on the number of words, unique words. So what we are assuming is a 500K, or you can say 5 lakhs, or 5 lakhs is the 0.5 million. So our metric size is now depends upon two things. One is the number of documents and another is the number of unique words. And then we can create this kind of matrix 101. Whether word exists in the document, there is 1, 0, and so on. So, but this kind of matrix where the number of rows are the size of matrix is 1 million by 1 billion is 10 raised to power 6 by, let's say, 5 lakhs. So 5 into 10 raised to power 5.
So size of matrix is, that is total number of cells. So these will be around 10 raised power 11. So these will be around 10 raised power 11. Now but there will be not more than 1 billion ones. So why this is extremely sparse? So who can tell why this is extremely sparse? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया एक तो अपने अटेंडेंस भी चैट में डालते जाओ. So who can answer that why there cannot be more than 1 billion ones? ईशानी आप बताओगे? ईशानी, are you able to hear? Yes, sir. तो 1 बिलियन वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. बट आई एम सेइंग इज कि जो टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास 1 मिलियन. वो डिपेंड करता है कितने डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उतने कॉलम्स हैं. और वर्ड्स हैं जितने टोटल यूनिक वर्ड्स हैं, और उसके अंदर हम लिख रहे हैं 1010. नाउ माय क्वेश्चन इज कि इस मैट्रिक्स में 1 बिलियन वन से ज्यादा नहीं होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे. मैट्रिक्स में सेल कितने? 10 रेज़ टू 11. व्हाट आई एम सेइंग इज कि 1 बिलियन कितना होता है? 10 रेज़ टू 9. और इतने वंस होंगे और बाकी सारे जीरोस होंगे. सो व्हाई दिस इज सो? एनी आइडिया? साहिल आप? सो 1 बिलियन वन का मतलब क्या है? यानी टोटल अगर 10 रेज़ टू 11 सेल्स हैं तो यानी कि ओनली 1% सेल में वैल्यूज है. वो रीजन क्यों है? जैसे आप डॉक्यूमेंट D1 की बात करो, एक लेट्स से आपका नॉवल है, इसमें आउट ऑफ पॉसिबल 5 लाख वर्ड्स इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स सारे वर्ड नहीं होंगे, क्योंकि व्हेन यू आर राइटिंग यू माइट बी हैविंग ओनली 3000 वर्ड्स और 4000 वर्ड. सारे वर्ड्स ही नहीं इसमें होने वाले. जितने भी इंग्लिश के सारे वर्ड्स हैं वो सारे नहीं होंगे, ओनली कुछ वर्ड्स होंगे. सो यूजुअली इंग्लिश के जितने वर्ड्स पॉसिबल हैं एक डॉक्यूमेंट में उसका 1% से ज्यादा नहीं होते. सो दैट्स व्हाई इस पूरी मैट्रिक्स में काफी स्पार्स होंगे, काफी जीरोस होंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये मैट्रिक्स जो भी बनेगी, सो देयर विल बी लॉट ऑफ जीरोस, यानी 99% वैल्यूज जीरोस होंगी और 1% होंगी. सो इट इज एक्सट्रीमली स्पार्स मैट्रिक्स. सो स्पार्स मैट्रिक्स आप सबने पढ़ा हुआ है? अंचल, साहिल, स्पार्स मैट्रिक्स पढ़ा हुआ आप सबने? यस सर. आप तो स्पार्स मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है भाई? क्यों हम अलग से ट्रीट करना चाहते हैं? सर स्पार्स मैट्रिक्स में मोस्ट ऑफ द एंटिटीज जीरो होती हैं, बस यही होता है. तो हाँ, ये जैसे ये हमारी मैट्रिक्स ज्यादा एंट्रीज 99% जीरो है, तो ये स्पार्स है. बट हम उसको नॉर्मल मैट्रिक्स से अलग से क्यों डील करना चाहते हैं? जैसे सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है दो स्पार्स मैट्रिक्स की, तो हाँ, व्हाई कांट वी डू द नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड उसमें मुझे क्या दिक्कत है? मुझे अलग से स्पार्स मैट्रिक्स, जैसे आपने एल्गोरिथम्स में अलग से चैप्टर ही पढ़ा होगा स्पार्स मैट्रिक्स का ना, और यू माइट बी वंडरिंग कि क्यों अलग से पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं पढ़ लेते, क्यों नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे नॉर्मल कर रहे हैं मैट्रिक्स? व्हाई शुडंट वी ट्रीट दिस एज ए नॉर्मल मैट्रिक्स? कोई बताएगा आंसर? अगर नहीं पता नो कह सकते हो. इट इज मैं पूछ रहा हूँ, मुझे इसलिए लग रहा है कि भी आप शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए पूछ रहा हूँ. अगर पता है तो अभी बता सकते हो, नहीं पता तो नो कह सकते हो. सर मे बी स्पेस की वजह से, मतलब आई एम नॉट श्योर.
नहीं, दैट इज करेक्ट, स्पेस की वजह से ही है। ये जो स्पार्स मैट्रिक्स ना, लेटर ऑन डीप लर्निंग में भी आप कॉन्सेप्ट आएगा ये। हाँ, अब स्पेस की वजह से एज यू सेड, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ इतनी बड़ी मैट्रिक्स का जिसमें इतने सेल्स हैं 10^11, तो उतनी स्पेस भी चाहिए। तो ज्यादातर मैट्रिक्स में जब इतनी बड़ी मैट्रिक्स को हम रैम में लेके आते हैं तो क्योंकि रैम में स्पेस नहीं होती, और अर्लियर जब स्पार्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तब भी रैम्स तो तब भी काफी कम ही होती थी, और दैट्स वाई यानी कि अलग से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इतने सेल रिप्रेजेंट करने की वजह हम क्या करते हैं कि जहां जहां 1 है वहां लिख देते हैं कि अब हमारे सेल क्या होंगे। जैसे सपोज ये इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, मैं 3 डिमेंशन की बताऊंगा, जिसमें पहली डिमेंशन होगी रो, दूसरी डिमेंशन होगी कॉलम कि दूसरे कॉलम में, दूसरी रो में तीसरे कॉलम पे, और ये वैल्यू है जो भी वैल्यू होगी, जैसे v1 वैल्यू है, इसमें तो 1 0 ही है, इसमें तो हम तीसरी वाली कॉलम हटा भी सकते हैं। तो जहां जहां 1 है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे कि दूसरे कॉलम में, दूसरी रो में तीसरे कॉलम में है, फिर दूसरी रो में 7वें कॉलम में है, फिर तीसरी रो में 6वें कॉलम में है। तो इस तरह से जहां जहां 1 है वही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब 1 कितने हैं टोटल? 1 बिलियंस। तो यानी कि 1 बिलियन इसकी रो हो जाएंगे, ठीक है ना, उतने 1 रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। 1 बिलियन रो, तो हर रो में 2-2 सेल रिप्रेजेंट करेंगे किस रो में किस कॉलम में 1 है। तो हमारी मैट्रिक्स का साइज बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू रेज़ टू पावर 10^9, जो पहले था 10^11। तो एक तरह से सिर्फ 1% रह गया, 1% कह लो या 2% कह लो, काफी कम साइज रह गया। अब इसमें ट्रेड ऑफ कहाँ पे होता है? कौन बताएगा ट्रेड ऑफ क्या? मैंने अब स्पेस तो कम कर दी, तो ट्रेड ऑफ कहाँ पे होगा? कहाँ पे हमें लिमिटेशन क्या होगी इसकी स्पार्स मैट्रिक्स की? एक्यूरेसी कम होगी। नहीं, एक्यूरेसी तो हम नहीं कम करेंगे। एक्यूरेसी तो जैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक्यूरेसी तो नहीं कम करेंगे, क्योंकि डाटा तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले तो हम पूरी मैट्रिक्स कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि जहां जहां 1 है उस रो और कॉलम का नाम लिख रहे हैं कि जहां 1 है, क्योंकि 1 काफी कम है तो उतनी रो 1 कॉलम ही बता रहे हैं। तो क्या होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? अब क्या होगा उसके साथ? अगर सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, और एक तो मैं ऐसी मैट्रिक्स देता हूँ, 2 मैट्रिक्स दी ऐसी पूरी जो नॉर्मल मैट्रिक्स होती हैं, तो यू कैन राइट ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आपने काफी बार लिखा होगा या काफी आपको पता ही है। बट अगर मैं कहूँ कि भी मैट्रिक्स ऐसी है, तो अब आप सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो मैं ये नहीं बता रहा, इसमें तो अगर वैल्यू 1 0 नहीं होती तो मुझे वैल्यू भी बतानी पड़ती। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीधी नहीं हो रही, आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। So it means कि time taken to do any matrix operation will become large, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टाइम टेकन। और गेन कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ स्पेस में। तो ये तो आप जब भी डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, so there is always a trade off between space and time. So स्पेस में काफी गेन हो गया, बट ऑपरेशंस स्लो हो सकते हैं। और जब आपको पढ़ाया जाता है स्पार्स मैट्रिक्स अलग से यूनिट, जब भी आपने एल्गोरिथम्स या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की बुक में पढ़ोगे, तो उसमें साथ में ये ऑपरेशन भी पढ़ाए जाते हैं कि कैसे एडिशन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके पूरे एल्गोरिथम्स अलग से होते हैं। तो एक यानी कि रिसर्च इसी डायरेक्शन में जाती है कि इसके ऑपरेशन को फास्ट करना कैसे है, हाउ टू मेक इट फास्टर। ठीक है, जो लेट आए अपनी अटेंडेंस लगाते हैं ना इसमें, हाँ चैट में, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स के साथ चलूं, एक तो मैट्रिक्स का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। सेकंड, इवन इफ आई ट्राई टू डू स्पार्स मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, स्टिल ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। सो इसलिए टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स, ठीक है, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। ये क्लियर है सबको? आप यस नो बोलते रहा करो, मुझे फीडबैक मिलता रहेगा। यस सर।
ठीक है ना, एवरीबॉडी इज क्लियर कि टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स का हमने सॉल्यूशन देखे, बिकॉज इन दिस कोर्स आई विल आल्सो कीप ऑन रिवाइजिंग योर डाटा स्ट्रक्चर कोर्स। डाटा स्ट्रक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट है आपके साथ रिवाइज हो जाएंगे। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस मोर। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन, अभी तक हमने दो सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर में किए थे। दूसरा सॉल्यूशन भी एक सीधा विंडोज फाइल सर्च या ग्रेप मेथड, और एक टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये दो तो आपको लास्ट लेक्चर में किए थे। और आज टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स का TDIM, इसका आप एब्रीविएशन भी देख सकते हो, वो भी देखा कि दैट इज नॉट गुड इनफ। अब थर्ड सॉल्यूशन हम देखेंगे, दैट इज इन्वर्टेड इंडेक्स। इन्वर्टेड इंडेक्स में मैं क्या करूंगा कि जितने भी टर्म्स हैं मेरे पास, यानी जितने वर्ड्स हैं, ब्रूटस, सीजर, वो जिस जिस डॉक्यूमेंट में आ रहा है मैं उसकी एक लिस्ट बना लूंगा। ठीक है, उसकी पोस्टिंग, जैसे ब्रूटस आ रहा है नंबर डॉक्यूमेंट ID 1 में, डॉक्यूमेंट ID 2 में, फिर 4 में, 11 में, 31 में, 45 में, 173, 174। ठीक है, तो टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स में मैं क्या कर रहा था, वहां पे मेरे पास डॉक्यूमेंट का एक कॉलम था D1, D2, और इस तरह से डॉक्यूमेंट थे, और इस साइड वर्ड थे, और मेरा काफी स्पार्स मैट्रिक्स बन रही थी। ठीक है, तो बट अब सॉल्यूशन मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे लिस्ट बना लूंगा। तो अब जितने पॉसिबल वर्ड है, जैसे हमने देखा कि 5 लाख वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो हर वर्ड के साथ एक पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा एक लिस्ट को। सो दिस इज ए लिस्ट, इसका नाम रखेंगे पोस्टिंग। लेटर ऑन वी कॉल इट एज ए पोस्टिंग। वो रिप्रेजेंट कर रही है कि किस किस डॉक्यूमेंट में वो आ रहा है। अब ब्रूटस जितने में आ रहा है वो सारे के सारे हम लिख देंगे, सीजर जितने में आ रहा है वो सारे लिख देंगे, सो कैलिफोर्निया कितने में आ रहा है कितने सारे लिख देंगे। सो अब हर डॉक्यूमेंट को एक आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि 1 का मतलब कि डॉक्यूमेंट आईडी के उस डॉक्यूमेंट में आ रहा है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन वी यूज फिक्स साइज एरे फॉर दिस? अब हमने डाटा स्ट्रक्चर देखनी है। आपके डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे इसके साथ। तो अब मुझे पहले तो ये 5 लाख वर्ड स्टोर करने हैं अलोंग विद द पॉइंटर। ठीक है, यानी ब्रूटस होगा, उसका पॉइंटर होगा। पॉइंटर क्या पॉइंट करेगा? इस लिंक लिस्ट को। तो एक लिंक लिस्ट, वेदर लिंक लिस्ट करनी है कि क्या करना, वो आप मुझे बताओगे। सो अब पहला क्वेश्चन है, कैन वी यूज फिक्स साइज एरे फॉर दिस? क्या इस लिस्ट के लिए फिक्स साइज एरे हम यूज कर सकते हैं? कौन बताएगा? हर किरण, आप बताओगे? रिपीट करना क्वेश्चन। क्या क्या क्या? आई कुडंट लिसन टू यू। सर रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं अभी कर रहा हूँ। हमने अब सोचा है कि इन्वर्टेड इंडेक्स बना रहे हैं। ठीक है, सो इन्वर्टेड इंडेक्स में क्या कर रहा हूँ मैं, जितने वर्ड्स हैं, जैसे ब्रूटस वर्ड आता है वो कहाँ कहाँ पे आता है, वो लिस्ट में स्टोर कर देता हूँ मैं। जैसे ब्रूटस डॉक्यूमेंट आईडी 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। तो ऐसे सभी वर्ड्स के साथ कर रहा हूँ। अब मुझे दोनों की डाटा स्ट्रक्चर देखनी है कि कौन सी बेस्ट होगी। ठीक है, तो दोनों की डाटा स्ट्रक्चर कौन सी बेस्ट होगी, वो दैट इज उसी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या ये फिक्स साइज एरे, इसकी जगह मैं फिक्स साइज एरे रख सकता हूँ? सर नो फिक्स साइज तो नहीं रख सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कितनी बारी आएंगे वर्ड्स। अगर सपोज मेरे पास 1 मिलियन वर्ड्स हैं, 1 मिलियन डॉक्यूमेंट है, तो अगर मैं फिक्स साइज रखता तो मुझे 1 मिलियन सेल का एक एरे रखना पड़ता। ठीक है, तो अब ब्रूटस तो 1 मिलियन में आता नहीं है, वो तो शायद 100 में आता होगा, 200 में। तो अगर मैं फिक्स साइज एरे रखता हूँ तो सारे के सारे आधे ज्यादा सेल खाली होते हैं, सिर्फ 100 ही सेल में वैल्यू होती है। तो यानी कि फिक्स साइज एरे से काम नहीं चलेगा। तो अब इस लिस्ट को स्टोर करने का क्या क्या तरीके होंगे? अब ये भी हमारा रहेगा कि अगर मैं, जैसे सीजर है, मैं देख रहा था और बीच में से मुझे
14 नंबर डॉक्यूमेंट में पता चला कि वो आता है, यानी कि 14 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कैन वी यूज लिंक लिस्ट फॉर दिस? कैन वी यूज अ लिंक लिस्ट? कौन बताएगा? मयंक, आप बताओगे कैन वी यूज लिंक लिस्ट? अगर यस तो बताओ, नो है तो क्या रीजन है क्यों नहीं यूज कर सकते लिंक लिस्ट फॉर दिस? मयंक आप सुन रहे हो? So Mayank might be sleeping. So कर सकते, मयंक ने लिखा है शायद कुछ ना, अपडेट करना कुछ, मयंक कर सकते हैं। सो और कौन कौन सोच रहा है कि लिंक लिस्ट का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता और लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं? यस एनीवन? अंचल आप बताओ, कोई भी आप डाटा स्ट्रक्चर बता सकते हो, आपने सारी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ी ना, आपको सारी याद। बताओ कि कौन सी डाटा स्ट्रक्चर बेस्ट होगी इसके लिए? सर लिंक लिस्ट ही बेस्ट है, क्योंकि इंसर्शन और वो इजी भी हो जाएगा, और अगर हमें वेरिएबल स्पेस भी हम कर सकते हैं कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, पता चल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में ऐड है ये वर्ड, तो वो ऐड करना है तो इजी रहेगा। और कौन एग्री करता है लिंक लिस्ट के साथ? जब कोई डिसएग्री करता है वो बताओ, जिसको लग रहा है कि लिंक लिस्ट इज नॉट ए गुड आइडिया। और कौन बताएगा? सुधीर, किसी को आइडिया हो कुछ? तो आपने डाटा स्ट्रक्चर तो सब पढ़े हुए हैं, लिंक लिस्ट में अब सपोज मुझे 14 ही ऐड करना है, तो जब भी मुझे कुछ एडिशन करनी है तो लिंक लिस्ट का एक तो मैं चाहता हूँ सॉर्टेड हो, ठीक है, लास्ट में ऐड नहीं करना चाहता। सो लिंक लिस्ट के तो ऑब्वियस प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मुझे सर्चिंग करनी है तो सर्चिंग ऑर्डर ऑफ एन में हो पाएगी, ठीक है। अगर मुझे देखना है कि ब्रूटस किसी डॉक्यूमेंट में आता है कि नहीं आता, तो ऑर्डर ऑफ एन से फास्ट सर्चिंग नहीं हो पाएगी, मुझे एक एक करके सारे, वर्स्ट केस में क्या होगा, लास्ट में मुझे मिलेगा जिस डॉक्यूमेंट। और दूसरा इंसर्शन करनी है तो तब भी अगर बीच में करनी है, जैसे सॉर्टेड, जैसे 14 मुझे यहाँ इंसर्ट करना है तो मुझे पॉइंटर सारे चेंज करने पड़ेंगे, 6 14 को करेगा पॉइंट, 14 फिर 16 को करेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस लिस्ट को सॉर्टेड रखना है, ठीक है, तो ताकि जब मैं इंसर्ट करूं, इंसर्ट करने के बाद भी सॉर्टेड रहे, तो बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर कौन सी हो सकती है? बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर कौन सी होती है? लिंक लिस्ट ही होगी। लिंक लिस्ट के अलावा आपने कौन कौन सी पढ़ी है? लिंक लिस्ट में तो हीप यूज कर सकते हैं। हाँ जी बताइए। हीप। हाँ हीप, हाँ हीप, हाँ बताओ आगे, हीप ही है आंसर। सर वो हीप सॉर्ट इजी होता है वैसे भी करना, कि अगर कोई ऐड किया और सॉर्ट कर दिया उसको, मतलब ऐसे कुछ। दैट इज गुड, गुड। सो अगर मैं इसको हीप की तरह रखूंगा तो मेरी सॉर्टिंग, एक तो इंसर्शन करने का टाइम कितना होगा, ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि हीप अगर आप लोग याद रखो, आई डोंट नो भी क्यों नहीं आप को याद है, हीप में आपने हीपीफाई प्रोसीजर देखा होगा, तो हीप का साइज कितना होता है, log n। तो जब भी मैं इंसर्ट करता हूं तो वो हीपीफाई प्रोसीजर से वो अपनी जगह पे आ जाता है ऑर्डर ऑफ log n में। हीप में अगर मैं मिन हीप लेता हूं तो सबसे पहला एलिमेंट मेरा सबसे छोटा होगा, और देन आई कैन रिट्रीव ऑर्डर ऑफ log n में मैं सारे डॉक्यूमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में निकाल सकता हूँ, तो इंसर्ट भी कर सकता हूँ, सॉर्टेड ऑर्डर में भी रख सकता हूँ। तो सिंपल लिंक लिस्ट तो इज नॉट ए गुड आइडिया, सो आइदर आई शुड गो विद अब इसमें कई वेज हैं, बाइनरी सर्च ट्री भी रख सकते थे, बट
उसमें भी स्क्यूड होने के चांसेस हैं। तो बेस्ट इज अ हीप, तो इसको हम हीप की तरह रखेंगे, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को कैसे रखेंगे, इसमें वर्ड है और पॉइंटर है, इसको कैसे रखेंगे? इसमें मुझे सर्च करना है, जैसे सपोज कोई क्वेरी आती है कि सीजर और कैलिफोर्निया कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे उनकी ये पोस्टिंग रिट्रीव करनी है। तो इसके लिए बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर कौन सी होगी? जिसमें सर्चिंग फास्ट होती है। ऑर्डर ऑफ वन सर्चिंग किसमें मिलती है हमें? श्रुति आप बताओ, ऑर्डर ऑफ वन सर्चिंग किसमें मिलती है? पता नहीं। आप क्योंकि ना सबके, मैं डिस्कस पता क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि सब कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो गोल हुए हुए हैं। ऑर्डर वन सर्चिंग मिलती है हैशिंग में, ठीक है। अगर मैं आपको एरे देता हूँ, एरे में सर्चिंग करनी है कुछ, सपोज एक एरे है आपके पास n एलिमेंट का, और उसमें सर्च करना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो कितना टाइम लगता है? किसी को भी आइडिया हो, एक एरे में सर्च करना कितना टाइम लगेगा? हाँ जी आंचल बताओ। सर लीनियर सर्च में तो ऑर्डर ऑफ एन लगेगा और बाइनरी में log n। हाँ, लीनियर में ऑर्डर ऑफ एन, बाइनरी तो तब कर पाएंगे अगर मैं इसको बाइनरी, सॉर्टेड होगा। अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री या सॉर्टेड है तब भी कर सकता हूँ, हाँ जी हाँ जी। सॉर्टेड है या वो कर सकता हूँ, यानी कि उनमें तो ऑर्डर ऑफ एन या log n तक जा पाएंगे। बट अगर मुझे पता कि कौन कौन से वर्ड हैं, तो मैं हैशिंग भी यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे पता कि डायनेमिकली नहीं चेंज हो रहे, तो हैशिंग में ऑर्डर वन रहेगा। तो ज्यादातर डिक्शनरी जो होती है वो हैश फंक्शन से हम बना सकते हैं, तो इसमें चांसेस हैं कि हम हैशिंग यूज करते हैं, ठीक है। इसको डिक्शनरी की तरह रखेंगे। सो डिक्शनरी वर्ड जब भी यूज होता है, तब डिक्शनरी को मेंटेन करने के लिए आइदर यू कैन यूज हैशिंग फंक्शन अगर तो आपकी फिक्स है, बट अगर आपको लगता है कि वर्ड्स नए नए आई जा रहे हैं, डायनेमिकली है, हैशिंग फंक्शन बनाना मुश्किल है, फिर आप इसको एक बाइनरी ट्री की तरह भी रख सकते हो, बाइनरी सर्च ट्री भी बना सकते हो, या कुछ की बुला के बी प्लस ट्री वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं बी प्लस ट्री और बी ट्रीज के बारे में नहीं पूछ रहा, वो अभी अगली बार याद रखना। So why I asked all those things? I could have simply, जब इस स्लाइड में मैं सिंपली आपको सीधा भी बता सकता था कि ये लिस्ट को हीप सॉर्ट कर लो, इस लिस्ट को डिक्शनरी में करो। द रीजन इज आई वुड लाइक कि भी आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएं। सो ओवर द इयर्स वी हैव सीन दैट कि जब स्टूडेंट्स डिसीजन लेते हैं, जब भी आप रिसर्च भी करोगे, सो ये डिसीजंस काफी बार डाटा स्ट्रक्चर्स के भी किस चीज पे बेस होते हैं, तो वो डिसीजन आपको लेने आने चाहिए। जब भी आप डिसीजन लोगे डाटा स्ट्रक्चर का, तो आपने चार चीजें ध्यान में रखनी है भी। एक तो इंसर्शन में कितना टाइम लग रहा है, डिलीशन में कितना टाइम लग रहा है, सर्चिंग में कितना टाइम लग रहा है, और अगर सॉर्टेड चीज चाहिए, सॉर्टेड आउटपुट चाहिए, तो कितना टाइम लग रहा है। और अब हर एप्लीकेशन में इन चारों में से कोई ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। किसी में तो होता है कि मुझे सॉर्टेड आउटपुट हमेशा चाहिए, तो सॉर्टेड आउटपुट चाहिए तो मिन हीप मैक्सिम ले सकते हैं, इंसर्शन जल्दी हो जाएगी। और किसी में चाहिए होता है कि मुझे सर्चिंग परफेक्ट चाहिए, अब मिन हीप मैक्सिम में सर्चिंग में भी ऑर्डर ऑफ log n लगेगा, तो उसमें फिर हैशिंग या कोई और तरीका देख सकते हैं। तो ये सब, अब हीप में क्या होता है, अब हीप में इंसर्शन में टाइम लग जाता है। लिंक लिस्ट में अगर सॉर्टेड नहीं है, इंसर्शन में तो लास्ट में इंसर्ट कर दो, कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारे जो चार ऑपरेशंस हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी डाटा स्ट्रक्चर यूज करनी है। तो जब भी आप डाटा स्ट्रक्चर्स का सब्जेक्ट पढ़ो, ये चारों के बेस पे सबकी कॉम्प्लेक्सिटी लिख लो, तो दैट वुड गिव यू आंसर कि कौन सा
डाटा स्ट्रक्चर किस एप्लीकेशन के लिए चाहिए होगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? आप यस नो बोल दिया करो बीच में। यस सर। तो ये मैंने जस्ट इसलिए कवर किया है कि सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ रिवाइज होते जाएं। ठीक है, नाउ वी मूव फर्दर। अब इन्वर्टेड इंडेक्स में हमारी वेरिएबल साइज रहेगी। ठीक है, ये तो हमने देखा लास्ट स्लाइड में कि हीप, मिन हीप, मैक्स हीप ले सकते हैं, और कॉन्टिन्यूअस रन और पोस्टिंग रहेगी। अब जब आपने डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा था तो आपने एक्सटर्नल सॉर्टिंग भी पढ़ा होगा। ठीक है, वो लास्ट में आ जाके आता है, काफी बच्चे वहां तक कई बार पढ़ते नहीं है। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग याद है सबको क्या होता है? अगर नो कहोगे तो देन आई विल टेल यू। याद है एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होता था? नो सर। दैट इज गुड। अगर नहीं पता तो मुझसे पूछो। एक्सटर्नल सॉर्टिंग इज कि जब आपके पास डाटा बहुत ज्यादा है और आपके ब्लॉक्स में पड़ा है, हार्ड डिस्क में पड़ा है, तब नॉर्मल क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट ये चीजें नहीं आप सोचते, क्योंकि ब्लॉक्स में से डाटा एक एक करके आएगा। तो और अब आपके सपोज हार्ड डिस्क में 10 ब्लॉक में पड़ा है, वो सारे के सारे ब्लॉक तो रैम में आ नहीं सकते, तो यानी कि क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट ये करने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक एक ब्लॉक लेके आएंगे, एक एक ब्लॉक को सॉर्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक्स तब काम आती है जब डाटा बहुत ज्यादा और हार्ड डिस्क में है, और देन वी पिक अप वन ब्लॉक, फिर उसको सॉर्ट करते हैं, फिर उसको दोबारा सेव कर देते हैं, फिर दूसरा ब्लॉक, एंड देन वी मर्ज टू ब्लॉक्स, देन ऐसे ऐसे करके मर्जिंग करते हैं। तो वो एल्गोरिथम एक्सटर्नल सॉर्टिंग में आते हैं। ज्यादातर आपकी जो बुक्स होंगी, जो भी पढ़ते हो आप, उनमें लास्ट में ये चैप्टर्स होते हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे फ्यूचर में आप बड़े बड़े डाटा के साथ डील करोगे। सो अब यानी कि ये तो हमने देख लिया कि पोस्टिंग्स हमें चाहिए, ये मैंने आपको कवर कर दिया कि मिन हीप, मिक्स हीप ले सकते हैं, इसके लिए डिक्शनरी ले सकते हैं। सो यहाँ डिक्शनरी आ जाएगी, और यहाँ पोस्टिंग के लिए हम मिन हीप या मैक्स हीप ले लेंगे, एंड सॉर्टेड रखेंगे। ठीक है, सॉर्टेड क्यों रखेंगे ये अभी एल्गोरिथम करेंगे हम एक, जिसमें सॉर्टेड रखने का एडवांटेज आएगा, क्योंकि हमने क्वेरी करनी है। हमने क्वेरी क्या करनी है कि कहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, या कहाँ ब्रूटस एंड सीजर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, ऐसी क्वेरी करने के लिए सॉर्टेड अगर होगा और तब बढ़िया होगा। अगर मैं बिना सॉर्टेड रखता जाऊंगा तब बाद वाले एल्गोरिथम कम्प्लेक्स हो जाएंगे, और ये तो मुझे एक बार ये डिक्शनरी बनानी है, एक बार ये पोस्टिंग बनानी है, क्वेरी तो मुझे हजारों बार करनी है। तो इसलिए ये भी ट्रेड ऑफ होता है कि कौन सा काम एक बार करना है और कौन सा काम 1000 बार करना है। तो लिस्ट तो एक बार बनानी है, एक बार टाइम लगा के सॉर्ट कर लेंगे, यानी मिन हीप या मैक्स हीप करेंगे तो सॉर्टेड ही रहेगी, और बट क्वेरी तो उसके बाद चलती जाएंगे। सो दैट्स व्हाई हम इसको सॉर्ट रखेंगे ताकि हमारा बाद वाला एल्गोरिथम इजी रहे। सो अब इन्वर्टेड इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? सो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे वेब पे होते हैं, वी विल हैव ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स दैट वी विल कैप्चर, उन सब में से वर्ड निकालेंगे, टोकन्स निकालेंगे जो जो हमने रखने हैं। तो एक टोकनाइजर यूज करेंगे। ये जब बाद में आगे क्लास से जाएंगे आई विल एक्चुअल टेल यू कैसे टोकनाइजेशन करते हैं। आपको एक मैं जुपिटर नोटबुक्स वगैरह के ना कोड भी दूंगा, सो वेयर आई विल शेयर कि कैसे कोडिंग वगैरह भी कैसे टोकनाइजेशन करते हैं पाइथन वगैरह में। तो टोकन आने के बाद हम टोकन मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे उनका रूट वर्ड निकाल सकते हैं। ये भी हम सेकंड यूनिट में देखेंगे, जैसे रोमन्स, कंट्रीमैन, ये सारे रूट वर्ड निकालेंगे जो लैंग्वेज डिपेंडेंट होंगे। फिर हम ये इंडेक्सर बना देंगे कि फ्रेंड किस किस डॉक्यूमेंट में आ रहा है, रोमन किस किस डॉक्यूमेंट में आ रहा है, कंट्रीमैन किस किस में, ये इन्वर्टेड इंडेक्स हम बना लेंगे। तो हमारा जो अभी तक हमने जो सोल्यूशन पढ़ा है इन्वर्टेड इंडेक्स के ऊपर है कि इन्वर्टेड इंडेक्स इस तरह से बनाया जा सकता है, विच वी फाइंड की स्पेस एफिशिएंट भी है। और अब हम इसकी क्वेरीज भी देखेंगे भी कैसे क्वेरीज उसकी सॉल्व होंगी। तो ये टोकनाइजर और ये दोनों कैसे करेंगे, टोकन कैसे निकालेंगे, और कैसे फ्रेंड्स का फ्रेंड कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये तो एग्जांपल सिंपल है, बट यू नो दैट कि इंग्लिश में तो प्लूरल
से सिंगुलर आना कोई सिंपल रूल नहीं होता, देयर आर कॉम्प्लेक्स रूल्स। तो वो कैसे करेंगे दैट वी विल डिस्कस इन द सेकंड यूनिट। सो इंडेक्सर के स्टेप्स आज स्टेप ही करेंगे, एल्गोरिथम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से डॉक्यूमेंट 1 ऐसा है, उसमें ये वर्ड है, वो हमने सारे के सारे लिख दिए डॉक्यूमेंट 1 के, ठीक है, कि आई एक बार आया, डिड आई डॉक्यूमेंट आईडी में आया, 1 में आया, डिड आया, नेक्स्ट आया। डॉक्यूमेंट 2 के भी सारे लिख दिए। तो पहला स्टेप तो यही है, टोकन निकाले और एक लिस्ट में डाल दिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसको हम सॉर्ट कर देंगे टर्म वाइज। तो सबसे ऊपर ए वाली टर्म, फिर बी वाली। सॉर्टिंग से क्या होगा कि जो टर्म सेम है, जैसे ब्रूटस दोनों में आ रहा है तो वो साथ साथ आ जाएंगे। सीजर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, वो साथ साथ आ जाएंगे सॉर्ट करने के बाद। तो पहला स्टेप लेने के बाद दूसरा स्टेप ये है। इससे एडवांटेज क्या हुआ, हमें पता चल गया कि एम्बिशियस सिर्फ एक बार आता है, ब्रूटस 2 बार आता है, तो इसकी हम पोस्टिंग बना देंगे। सीजर 3 बार आता है, इसकी पोस्टिंग बना देंगे। तो अब हमें सॉर्टिंग करने के बाद, यानी कि पहले तो हमने एक एरे बना दिया, उसमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा। सॉर्टिंग में यू ऑल आर अवेयर कि एन लॉग एन टाइम लगेगा, तो जो बेस्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद अब हमारे पास हम ऐसा इन्वर्टेड इंडेक्स बना सकते हैं जिसमें एम्बिशियस कितनी बार आता है, ये फ्रीक्वेंसी भी हम देखेंगे, ये हमें चाहिए, बाद में एल्गोरिथम ही यूज करेंगे। डॉक्यूमेंट 2 में आता है, ब्रूटस 2 बार आता है 1 और 2 में, ऐसे सीधे 2 बार आते हैं या 3 बार आते हैं, वो सबकी पोस्टिंग बना देंगे। सो जो वर्ड सीजर 3 बार आता है बट डॉक्यूमेंट 2 में ही 2 बार आता है, तो सीजर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 होनी चाहिए और यहाँ पे 1 और 2 में आता है। तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और सीजर की अपनी फ्रीक्वेंसी, एक तो वर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है, एक डॉक्यूमेंट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमारी इन्वर्टेड लिस्ट बन जाएगी एक, ठीक है। सो ये फ्रीक्वेंसी का काम क्या आएगा, ये हम एल्गोरिथम में देखेंगे, क्योंकि एल्गोरिथम में अभी हमें स्पेस ज्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है। अगर इसको स्टोर करते हैं तो स्पेस वेस्ट हो रही है हमारी, बट लेटर देखेंगे कि क्या हमें हेल्प करती है क्वेरी करने में, तो वो हमें एडवांटेज हम देखेंगे। सो अब हमारे स्टोरेज में कहाँ पे कर रहे हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पॉइंटर भी है एक, ठीक है, एक पॉइंटर भी जो पॉइंट कर रहा है उसकी भी साइज है, और फिर पोस्टिंग लिस्ट। तो ये सब में हमारी स्टोरेज तो बढ़ गई है। टर्म डॉक्यूमेंट इंसिडेंस मैट्रिक्स में स्पार्स थी, बट जैसे मैंने लेक्चर में कहा कि स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कम डाटे में, बट यहाँ पे एडिशनल चीजें भी स्टोर कर रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी भी स्टोर कर रहे हैं, पॉइंटर भी कर रहे हैं। तो यू माइट हैव क्वेरी की, अब कोई स्पेस में कोई बहुत ज्यादा सेविंग नहीं की हमने, स्पार्स मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन अगर बेटर कर लेते तो वो भी बेटर था। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या जो क्वेरीज हैं, कि अगर कोई क्वेरी करता है कि ब्रूटस और सीजर कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आता है, तो क्या उसमें गेन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर फोकस होगा, हम एक एल्गोरिथम करेंगे, उस एल्गोरिथम में देखेंगे कि कैसे अगर ये डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें मुझे सर्च करना है कि ब्रूटस और सीजर कहाँ कहाँ पे आता है, तो एल्गोरिथम कैसा होगा और कितना टाइम लगेगा, कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, और क्या वेदर दैट इज अ गुड एल्गोरिथम और नॉट। ये क्लियर है सबको? यस सर। तो आज के लेक्चर में जस्ट आई समराइज, आज हमने किया क्या, हमने पिछला रिवाइज तो किया ही है, बट हमने इन्वर्टेड इंडेक्स देखा, और मेजर फोकस क्या कि व्हाई आई एम रिवाइजिंग द डाटा स्ट्रक्चर्स, बिकॉज ये आपके लिए भी जरूरी है, आगे आगे काम आते जाएंगे, और इनको स्टोर कैसे करना है ये भी काम आएगा। जब हम लैंग्वेज मॉडल करेंगे, जो अभी रिसेंट लैंग्वेज मॉडल्स हैं, तो उनमें 1.75 बिलियन पैरामीटर्स होते हैं, और उन पैरामीटर्स ये को स्टोर करना, यूज करना, उनके लैंग्वेज मॉडल बनाना, सो वो भी आपको तभी क्लियर हो पाएगा। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में आप डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एट एनी टाइम यू कैन आस्क। अब अपने कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के थ्रू, इस
सब्जेक्ट के थ्रू आप क्लियर करो सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जितना आप पार्टिसिपेटिव रहोगे उतना ही हम बेटर आगे मूव कर पाएंगे और उतना बेटर लर्निंग कर पाएंगे। सो नॉट ओनली अबाउट दिस, वी विल बी लर्निंग मेनी थिंग्स इन दिस थिंग। और लेटर ऑन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, सो देन आई विल we will start discussing about how to code these things. I will keep on sending to you the notebooks.